Okay, so day one of studying economics, and today we are doing fundamentals, demand and supply. So, first, the big picture. Economics is simply the study of how people make choices when resources are limited. Obviously, we have just one earth, और उस पे resources भी limited हैं, so yeah. Everything in economics, inflation, RBI policy, GDP, poverty, traces back to one core idea. People want more than what's available. So how do we decide who gets what? So do you mean अगर मतलब population कम हो जाए and we have exactly या फिर मतलब उससे कम जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा अगर resources available हो तब क्या सबको equal मिल सकता है क्या? Is the utopian world possible? Is my question और देखते हैं. The answer is through मतलब इसका the people want more than what's available right now at least. So how do we decide who gets what? The answer is through market where demand and supply interact. Uh-huh. So part one is demand. What is demand? Demand is the willingness and the ability to buy goods at a given price. Important note is just wanting something is not demand. A poor man wanting a Ferrari is a desire, not a demand. Demand needs purchasing power behind it. The core law of demand. When prices rises, quantity demands falls. Quantity demanded falls. When prices fall, quantity demanded rises. For example, अगर एग्स 5 रुपए के हैं तो हम 10 खरीदेंगे, 15 के मतलब उसका रेट बढ़ गया है तो हम कम खरीदेंगे, और रेट कम हो गया है तो हम ज़्यादा खरीदेंगे. As given examples, prices and demand move in opposite direction always. Basically, they are inversely proportional. Is there a proportionality constant to them? I don't know. Why does this happen? दो reason. ठीक है. Substitution effect. When eggs get expensive, you switch to bread. You substitute away from the costly item. And the second is income effect. When prices rises, your 100 rupees buys less than before, so you feel poorer, so you buy less. What shifts demand? तो डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं? Very important. For example, price changes move you along the demand curve, but these factors shift the entire curve. Factors are, for example, income rises. अगर income बढ़ जाती है तो obviously लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे. Population rise हो जाती है तो overall मतलब जो country के GDP वगैरह में देखेंगे तो more people equals more demand for everything. या price of related goods, जैसे पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हैं तो कार के प्राइसेस गिर जाएंगे. एक्सपेक्टेशंस, जैसे अगर पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि प्याज महंगी हो जाएंगी अगले महीने तो फिर वो अभी से सारी ख़रीदने की कोशिश करेंगे, मतलब होल्ड करने की कोशिश करेंगे. टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मतलब जैसे किसी चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, फॉर एग्जांपल फिटनेस ट्रेंड चल रहा है तो प्रोटीन वाली चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी. अभी कोरियन ट्रेंड चल रहा था तो सब ने अपने कोरियन ब्रांड्स निकाल दिए थे, खाने वालों जितने भी ब्रांड्स वगैरह थे. ठीक है. सो पार्ट टू इज़ सप्लाई, demand and supply. Okay, so what is supply? Supply is the willingness and the ability of producers to offer a good at a given price. Okay, so the core law is law of supply. When prices rises, quantity supplied rises. When prices fall, quantity supplied falls. So ये directly proportional है supply prices से, और demand inversely. सिंपल एग्जांपल है, अगर वीट 10 रुपये पर केजी मिलेंगे तो फार्मर्स 100 टन्स उगाएंगे, और अगर उसके वीट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं गेहूं के तो फार्मर्स और ज़्यादा खेती करेंगे गेहूं की, क्योंकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए. हायर प्राइस इक्वल्स हायर प्रॉफिट एंड मोर प्रोड्यूसर्स वांट टू सेल. सो प्राइस एंड सप्लाई मूव इन सेम डायरेक्शन. ग्रेट. सो व्हाट शिफ्ट्स सप्लाई? सप्लाई को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स. अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई तो मशीन ज़्यादा एफिशिएंटली काम करके ज़्यादा सप्लाई बनाएंगी. येस, मशीन्स प्रोड्यूस मोर एट सेम कॉस्ट. इनपुट कॉस्ट राइज मतलब अगर जैसे कुकीज़ है, वो बनाने के लिए, जैसे कोकोआ कुकीज़ है मतलब चॉकलेट कुकीज़, तो उसके लिए कोकोआ की अगर प्राइस बढ़ गया है तो फिर कुकीज़ की सप्लाई घट जाएगी, मतलब शायद नहीं. पेट्रोल प्राइस राइजेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट rises, supply falls.
इनपुट कॉस्ट से मतलब जो बिजनेस ओनर है उन्हें नुकसान होता है, इसलिए सप्लाई गिर जाती है। नेचुरल फैक्टर्स, तो गुड मॉनसून, हायर क्रॉप सप्लाई, ऑब्वियसली मतलब ये एक्स्ट्रा मतलब उन्हें हेल्प मिल गई है नेचर से। गवर्नमेंट पॉलिसी से हेल्प मिल जाए तब भी सप्लाई, सब्सिडी सप्लाई राइजेस, टैक्स लगा दोगे सप्लाई गिरेगी। सब्सिडी क्या होती है मुझे नहीं पता है, मतलब वैसी कुछ एड होती होगी गवर्नमेंट की तरफ से। नंबर ऑफ़ सेलर्स, अगर ज़्यादा सेलर्स हैं तो क्या, मोर फार्मर्स एंटर, टोटल सप्लाई राइजेज, सप्लाई राइज हो जाएगी। पर फिर कॉस्ट मतलब ज़्यादा लोग सप्लाई मतलब बढ़ा देंगे तो फिर लोगों को वो सस्ते में मिल जाएगा, तो फिर से ये बैलेंस आउट होने के लिए लोग इसे छोड़ने लग जाएंगे, तो मतलब चीज़ें बैलेंस अपने आप हो जाती हैं। is what I'm getting from here. Part 3 is where they meet, equilibrium. हाँ यही मैं सोच रही थी। When demand and supply are equal, या फिर ये अलग है, when demand and supply are equal, that's equilibrium price, also called market clearing price. Think of it like seesaw. If price is too high, तो more supply than demand, surplus, price falls. अरे हाँ यही तो मैं बोल रही थी, चलो ठीक है। प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा होगी, क्योंकि जो बिज़नेस ओनर्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट खींचना है, और अभी प्राइस हाई चल रहे हैं। पर अगर प्राइस हाई चल रहे हैं तो लोगों की डिमांड गिर जाएगी। अब जब डिमांड गिर जाएगी तो दोबारा से उनके पास मतलब एक्स्ट्रा गुड्स होंगे जो सेल नहीं हो रहे होंगे, तो दोबारा से उनका प्राइस गिर जाएगा। या अगर प्राइस इज़ टू लो तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी फिर बाद में शॉर्टेज होगी तो उससे सप्लाई बढ़ जाएगी। आई गेस नहीं, मतलब सप्लाई पे लोग ध्यान देंगे, ऐसा कुछ होगा। इफ प्राइस इज टू लो, मोर डिमांड देन सप्लाई, शॉर्टेज, प्राइस राइजेस, पहले प्राइस राइज होगा, ठीक है, मतलब शॉर्टेज होगी पहले प्राइस राइज होगा, उसके बाद लोग एंट्री करेंगे और सप्लाई बढ़ाएंगे, बट फिर से यही साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो मार्केट नेचुरली मूव्स टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। बहुत बढ़िया। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ड्यूरिंग कोविड डिमांड फॉर सैनिटाइजर शॉर्ट अप बट सप्लाई couldn't मैच। शॉर्टेज हो गई तो प्राइस स्पाइक कर गए, तो मोर कंपनी स्टार्टेड मेकिंग सैनिटाइजर, इवेंचुअली इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड। नाइस, ग्रेट। सो व्हाई दिस मैटर फॉर आरबीआई, ग्रेड बी। आरबीआई कंट्रोल्स इंटरेस्ट रेट्स। सो आरबीआई कंट्रोल्स द इंटरेस्ट रेट्स, अच्छा, विच इज़ लिटरली द प्राइस ऑफ मनी। ये प्राइस ऑफ मनी क्या होता है? मनी तो अपने आप में प्राइस है ना? नहीं, प्राइस और मनी सिनोनिम्स नहीं है क्या? आरबीआई कंट्रोल इंटरेस्ट रेट्स विच इज़ लिटरली द प्राइस ऑफ मनी। मुझे ये स्टेटमेंट बिल्कुल समझ नहीं आई है। आरबीआई राइजेज रेट्स तो बोरोइंग बिकम्स एक्सपेंसिव। अच्छा, ये लोन्स की बात हो रही है लगता है, कि आरबीआई ने लोन्स के रेट्स बढ़ा दिए हैं तो अब बोरो नहीं कर पाएंगे, मतलब वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। डिमांड फॉर लोन्स फॉल्स, यस, लोन्स की बात हो रही है। डिमांड फॉर लोन्स फॉल्स, अब लेस मनी इन इकोनॉमी। अच्छा, तो लेस मनी इन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन कूल्स डाउन। अच्छा, यू जस्ट अंडरस्टूड द कोर लॉजिक ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इट्स जस्ट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। इसमें मज़ा आया मुझे, ये वाला इस एरिया और पढ़ने का है। क्विक रिकैप, तो डिमांड होती है विलिंगनेस और एबिलिटी टू बाय, इसका उल्टा सप्लाई होती है विलिंगनेस तो है ही, एबिलिटी टू सेल, एबिलिटी टू बाय एंड एबिलिटी टू सेल। लॉ ऑफ डिमांड, सॉरी, तो अगर प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगी, और प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, और इवेंचुअली दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, फिर डिमांड इक्वल सप्लाई हो जाएगा। या मतलब ओवरऑल मतलब अराउंड इक्वल, नॉट कम्प्लीटली इक्वल तो नहीं हो सकता होगा, आई डोंट नो। क्विक क्वेश्चंस आंसर इन चैट, ठीक है? तो देखते हैं। पेट्रोल प्राइसेस राइज शार्पली, व्हाट हैपेंस फॉर डिमांड्स ऑफ फॉर कार्स एंड व्हाई? If petrol prices rise sharply, then demand for cars falls, because people would need petrol to make their cars function, and they can't afford that. So why would they buy it? I don't know. And the second question is, a new technology makes rice farming 3x more efficient. What happens to rice supply? The supply would increase, but prices might fall later, because supply would get easier. So yeah, they would have surplus, I don't know. Question 3 is, during mango season prices fall,
Is this demand or supply side story? Yes, during mango seasons, because a lot of demand is there and a lot of farmer then grows mangoes, then surplus, because of the surplus supply, the prices fall. Excellent, genuinely impressive for day one. Your instincts are already economic. Let me grade each. मुझे पढ़ूँ क्या कि नहीं पढ़ूँ? एग्ज़ाम तो पढ़ लेते हैं चलो. क्वेश्चन वन था पेट्रोल और कार्स के बारे में. आंसर करेक्ट. योर रीजनिंग वाज स्पॉट ऑन. पेट्रोल इज नीडेड टू रन द कार, so when petrol gets expensive, owning a car becomes costly overall. This is the complementary goods concept. Petrol and cars go together, so if one gets expensive, demand for both falls. Exam term to remember: petrol and cars are complementary goods. They complement each other. Demand moves in the same direction for both. Rice farming technology. So ये correct है. You didn't just say supply increases, you went further and said prices might fall due to surplus. That's exactly what happens. Better technology, more supply. Surplus, prices fall, consumer benefit. So this is literally how the green revolution worked in India in 1960s and 70s. Wheat and rice productivity shot up and surplus was there, so food prices stabilized. That's an RBI exam story right there. So mango season, you answer correct. Yes, during mango season, supply increases massively because all farmers harvest together. Surplus, there it creates surplus and the prices fall. Exam term to remember: this is a seasonal supply shock. Seasonal supply shock. RBI actually monitors this because fruit vegetable prices cause seasonal inflation spikes. Relevant to monetary policies. Nice. I was not expecting कि इतनी छोटी सी चीज़ इतना मतलब RBI तक को इस पे करना पड़ेगा. Anyways, तो for day one you reasoned through all three and you didn't just memorize, you thought. There's a difference between clearing phase 1 and clearing phase 2. One new term before we close today. Since you understood complementary goods naturally, here's the pair. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट करें, सब्सटीट्यूट क्या होता है? अच्छा, रिप्लेस करें. कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो यूज़ टुगेदर. वंस प्राइस, एक का प्राइस मतलब बढ़ गया है तो दूसरे का बढ़ जाएगा. एक का गिर गया है तो दूसरे को गिर जाएगा. है यूज़ टुगेदर. वंस प्राइस राइज हर्ट्स डिमांड फॉर बोथ. और सब्सटीट्यूट गुड्स होते हैं रिप्लेस ईच अदर. वंस प्राइस राइज हेल्प्स डिमांड फॉर अदर. एक का प्राइस बढ़ गया दूसरे का डिमांड बढ़ जाएगा. नाइस. तो जैसे कार और पेट्रोल है, तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का प्राइस मतलब कार लोगों को महंगी लगने लगेगी. बटर का प्राइस बढ़ेगा तो लोग ब्रेड भी कम खाएंगे विदाउट बटर ऑब्वियसली. और अगर टी का प्राइस बढ़ गया है तो लोग कॉफ़ी भी स्विच कर जाएंगे. पेप्सी का बढ़ गया है तो कॉफ़ी स्विच कर जाएंगे. तो दीज आर स्विचेबल. These come directly in RBI grade B exam. So day one done. Tomorrow's topic: elasticity of demand. Why some goods demand barely changes even when क्या elasticity of demand. Why some goods demand barely changes even when prices shoot up, like medicine, पेट्रोल. क्योंकि लोगों को काम पे तो जाना ही है ना. बीमार है तो दवाई तो खानी ही है ना, खानी तो पड़ेगी. एंड वाई अदर्स क्रैश लाइक लग्जरी आइटम्स. ऑब्वियसली लग्जरी, अगर पैसे नहीं है लोगों के पास तो लग्जरी नहीं खरीदेंगे. पैसे नहीं भी है, कम पैसे है तब भी मेडिसिन तो खरीदेंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर RBI. ठीक है. सो आज का इज़ डन. टाटा बाय बाय.